What's up everyone? I hope you all are doing good. So in this video we're going to talk about a prop firm which is there in the market since 2016. It's January 2026 when I'm making this video, and this CFD prop firm is there in the market since 2016. Like, it is one of the oldest CFD prop firm, the prop firm which has never denied a single payout. And I can say this one thing about this particular prop firm, that if you follow all the rules, you're gonna get your payout without any issue. On top of that, this prop firm has no bullshit rule. You have to just stay in your daily drawdown limit, you have to just stay in your overall drawdown limit, and then you just have to like follow one or two things, which is you have to complete 3 minimum profitable days of 0.5%, and that's it. You have to complete it in phase 1, phase 2, and your funded phase. Apart from that, there is no other rule. I told you there are a few things. So the first thing is the 0.5% profitable days, which you need 3 in phase 1, phase 2, and phase 3. And the second thing is, like, which is very common, which is there in almost every single prop firm, that is news trading. You won't be able to trade news, and the news trading window is 4 minutes. You won't be able to trade 2 minutes before the news and 2 minutes after the red folder news, and that's it. That is it. There is no other bullshit rule. You must have seen a lot of videos of people, even I have made a video about prop firm which are new in the market and which has like almost no rule. You just have to like follow daily drawdown, overall drawdown, and that's it. So this prop firm is there in the market since 10 years, and still, like, they are one of the best, and still they don't have any bullshit rule at all. And if I keep all these things aside, the best part is there is no payout denial since last 10 years. I've never seen a guy posting about payout denial with fires or 5%er. I'm still confused with the name, what exactly they call it. It's fires, the fires, or 5%er, but I've never seen a guy who faced issue with 5%er. And again, I can say this thing in my YouTube video that if you guys follow every single rule, and if you don't do anything which is prohibited, you're gonna get your payout no matter what exactly the payout amount gonna be. You can make like 20, 25, even 30k on your account, and still they're gonna pay you, because they're in the market from such a long time, and they are here because of the trust factor which they have built. Now, if you are someone who trade like me, who risk like more in the challenge phase and then slow it down into the funded stage, like what I do, I risk 3 to 4%. Earlier I used to risk 3 to 4%, but now I reduced it down to 2 to 2.5%, because a lot of prop firm has come up with that 3% risk per trade rule in the challenge phase as well. But if you're someone who is like me, if you're someone who risk like 3 to 4%, they might restrict you. It is not like 100% that they're going to restrict you. They might restrict you, but that too for 1 or 2 payouts only, when you like show them the profitability. Because this is something which happened with me. मेरा एक 100k account था, and this happened in 2025. They restricted me on my 100k account, and I took that account to 10% positive, and I have withdrawn almost like 8,000 or 7,800 USD out of that particular account, and they removed all the restriction. On top of that, they scaled my account, so my 100k account becomes 125k account. And इसी से एक और बात आती है, that this prop firm has the best scaling plan in the entire CFD prop firm space, or I can say the entire prop firm space, because futures में scaling होते नहीं है. So this prop firm has the best scaling plan in the entire prop firm space, and I told you the prop firm name is Fires, the Fires, or 5%. मेरे को अभी भी नहीं पता क्या बोलते हैं, but great prop firm, solid prop firm. I'm gonna show you when I purchased my first account with them. I'm gonna show you how much I have withdrawn till now from them, and how I scaled my account. Plus एक और चीज है ना, जो तुम लोग मेरे से बहुत ज्यादा पूछते हो कि भाई मैंने अपने अकाउंट को अप लेके गया था, एंड मेरा लास्ट का 0.25, 0.2 या 0.1% बचा था, बट मैंने अपने वहां से अकाउंट को पूरा रिवर्स कर दिया, एंड वहां से मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया. दिस इज समथिंग which happened with me recently in my last account only. This is something which happened with me. I'm gonna show you that as well, and how I deal with that particular thing when these kind of thing happen with me. I'm gonna talk about that as well. So without wasting any time, let me take you to my dashboard and show you my stats, the number of account I have purchased till now, the payout I have withdrawn from this particular prop firm till now, and what I do when I go through situation where जहाँ पे मेरा लास्ट का 0.1, 0.2% बचा होता है, वहां से मैं अपना पूरा अकाउंट रिवर्स करके ब्रीच कर देता हूँ. तो so let me take you to the dashboard, my dashboard. Let me show you every single thing, and let me show you the scaling plan as well. Why I said that this prop firm has the best scaling plan in the entire prop firm space. On top of that, my job or my goal here on social media is to talk about the best plan which they have. So they have like 3 plan which I'm going to show you, and I'm going to talk about the best plan. And if you're someone who gonna buy account with the Fires, make sure you go with that particular account only, because दो account इतने बढ़िया है नहीं, और you can say मेरे को लगते नहीं है. You can do your own research, read the rules, and तुमको लगे अगर कि भाई सही है, then you can go ahead with that. But even what I have seen on social media from such a
long time. 95 or even I can say 95 to 97% of the people only trade FIRE's high stake account, which I'm going to talk about in this video. So without wasting any time, let me take you to my dashboard. अब rules तो है नहीं, I told you, daily drawdown, overall drawdown, 0.53 profitable days in phase 1, phase 2, your funded phase as well, and you are good to go. Baki there is news trading rule, which is you won't be able to trade 2 minutes before and 2 minutes after the news, but I'm going to show you my stats. I'm going to show you what I'm going to do going ahead and how I scaled my account and what I did when I lose my account जहाँ पे मेरा सिर्फ 0.2% बचा था phase 2 में account को pass करने से. So this is the FIRE's dashboard. The platform is there since 2016 and I have recently taken a podcast with Sameer. अरे कहाँ जा रहे हो भाई? I have recently taken a podcast with Sameer. I'm gonna upload the podcast very soon. It's gonna be in 2 parts because बहुत बड़ा podcast है भाई and we discussed a lot of things. So the guy has already given like 1 or 2 podcasts, but उस podcast में तुमको इतना डिटेल में कभी डिस्कशन नहीं मिलेगी जितना जो मैं podcast डालने वाला हूँ उसमें तुमको मिलने वाली है, because almost 2 घंटे का podcast होगा, मेरे को 2 पार्ट में ही डालना पड़ेगा वरना तुम लोग परेशान हो जाओगे, देख भी नहीं पाओगे. So I have done a podcast. He has video like almost 41K and if we go down, he is also the brand manager of FIRE's. अरे कहाँ गए भाई, कहाँ चले जाते हो तुम? अरे भाई, yeah. So he is the brand manager of FIRE's as well. But if we come down, you can see the highest rated prop firm, and the prop firm has won like all the awards in 2025. And yeah, if we like go down, this is something which now you guys are very aware of. So this is the plan which I talk about. High stake plan is the basic 2-step plan which I always suggest with any of the prop firm. किसी किसी prop firm में 1 step भी अच्छा होता है, but like majority of the CFD prop firm, I always suggest a 2-step plan. बाकी they have this hyper growth 1 step, which is I think is like quite highly priced, and that's the reason why I don't suggest it, because 20K account costs you 850. Maybe you'll get some sort of discount, but I never purchased it, and I told you like 95 to 97% of the people who trade with FIRE's only go with हाई स्टेक अकाउंट, बिकॉज ट्विटर पे मैं देखता हूँ, इंस्टाग्राम पे देखता हूँ, यूट्यूब पे देखता हूँ, जो भी ट्रेड करता है वो हाई स्टेक ही ट्रेड करता है. उसके अलावा ये 3 स्टेप अकाउंट भी है, विच इज अ बूट कैंप अकाउंट, जहाँ पे बिगेस्ट अकाउंट साइज इज 250K एंड यहाँ पे तुमको 100K से तुम्हारी स्टार्टिंग होती है. देयर इज नो डेली ड्रॉडाउन लिमिट एंड अ सिंगल अकाउंट कॉस्ट यू 225 एंड तुमको 3 फेज पास करने पड़ते हैं, जहाँ पे 5% का तुम्हारा ड्रॉडाउन है, 6% का टारगेट है. 3 फेज पास करने के बाद यू रीच टू द फाइनल स्टेज, जहाँ से तुम पे आउट ले सकते हो, which where you get a drawdown of 4% and a daily pause limit of 3%. This is something if you want, like you can go ahead with, but again, the best one is high stake. And there is one more thing. I had a discussion with one of my friend who recently joined FIRE's, and I had a discussion with Sameer as well, जिसका मैंने भी पॉडकास्ट लिया. He told me that they are coming up with 25K plan and a 50K plan. So ये 20K plan and 60K plan दिख रहा है ना, they are removing this plan and they are coming up with 25K and 50K, because 25K and 50K एक industry standard बन चुका है. So there are plan like 5K, then 10K, then 25K, 50K and 100K and 200K आता है. So they don't have 200K plan in a normal 2-step account, but they have these 2 plan, but now they are removing this and they are coming up with 25K and 50K because वो industry standard है. People like find it very easy to trade that account and लोगों को वही अकाउंट चाहिए, लोगों की ज़्यादा उस अकाउंट के लिए डिमांड है, so they are coming up with that account. On top of that, they sometime come up with 2.5K account as well. अब वो जब भी आता है वो उसका अपडेट दे देते हैं ये लोग. You guys can follow me on Telegram. You guys can join my Discord as well, so that वहाँ पे तुमको मैं जब भी ऐसा कुछ आए मैं वहाँ पे अपडेट दे दूँ. और you can follow me on Instagram as well. So these all are the account. By the time I upload this video, maybe 25K and 50K हो चुका होगा. But yeah, why this is the best? Because this has the OG plan. What do you mean by OG? भाई जो जो सबसे पुराना जो 2-step अकाउंट का प्लान है ना, they have that plan and that plan is still there with them from such a long time, and that plan is 8% in phase 1 and 5% in phase 2. This is like the OG plan. ये मतलब आजकल बहुत सारी prop firm है जो phase 1 में 10% कर रही है, phase 2 में 5% रख रही है, या कोई prop firm में phase 1 में 10%, phase 2 में 8%, या उसको मैनिपुलेट करके कोई prop firm कर रही है कि phase 1 में 9%, phase 2 में 6%. So they are playing with
these 2 to 3 things, but they have the OG plan, which is 8% target in phase 1, 5% target in phase 2, 5% drawdown in all the phases, daily drawdown in all the phases, and 10% overall drawdown in all the phases. And the minimum profitable days 3 of 0.5% each. So ये तो normal है, but this is something which is there from the very beginning, and this is the OG plan, the OG CFD Profirm plan. And I never purchased a 5k or 10k account even when I start trading Profirms. मैंने Profirm में भी कभी 5k अकाउंट लिया ही नहीं. I started with 10k अकाउंट, एंड जब मैं फायर्स में सबसे पहली बार आके मैंने ट्रेड करा था, मैंने 100k का ही अकाउंट लिया था. आई एम गोना शो दैट एज वेल, बट या एज यू कैन सी they have the OG plan. I told you they don't have any other rule. On top of that, you're gonna get the refund as well when you like pass your account, जो मेरे को ऑलरेडी 2 बार मिला हुआ है, बिकॉज मैंने एक बार पास करा था बट मैंने उसको ब्रीच कर दिया, देन मैंने वापस से पास करा था, मैंने उसको 10% स्केल भी करा और उसमें मेरे को रिफंड मिला था. सो that is something which you can see. There is usually no discount. There is 5 to 10% discount for new users only. So if you are someone who has never tried Fires, you can like check the link in the description. तुमको 5 to 10% के अंदर जो भी discount available होगा वो मिल जाएगा. But if you are someone who already traded with Fires, बहुत rarely discount आते हैं because it is like one of the most premium Profirm, and that is the reason like they are in the market for such a long time. Because ये discount and इन सब पे लाके सिर्फ sales के लिए ऐसा नहीं करते कि बस कैसे भी करके अकाउंट बिक जाए. They are like focused on giving the premium service. They are focused on giving payouts. And how the Profirm gonna give the payout? जब भाई challenge का cost इतना होगा, because in the end Profirm are paying you from the challenge fees, the failed challenge fees. Even you guys know this by now. कि जो भी challenge fail कर रहे हैं उनके जो fees बच रही है Profirm के पास उससे ही payout जा रहे हैं. And when the Profirm is premium, when they charge good amount of money out of people, then only they'll be able to like give the payouts, give the big payout, give the consistent payout, and then only they're not gonna reject the payout unlike other Profirm, or like many of the CFD Profirm. So that's it. So the 100k account, I started with a 100k account of Fires, and I still traded a 100k account which cost 545. जब मैंने पहली बार लिया था तो I guess ये मेरे को 495 का पड़ा था, because first time में मेरे को 10% का डिस्काउंट मिला था. You can check the link in the description, and I don't have any code as of now, but अगर मेरे पास कोई कोड हुआ by the time I'll upload this video, मैं उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. But again that will be only available for the first time user. अगर तुम्हारा अकाउंट फेल होता है then you gonna get like $40 रिवॉर्ड, जो कि अभी मेरे पास पड़ा है क्योंकि मैंने रिसेंटली अकाउंट अपना फेल कर दिया था. So जो मेरे को इस टाइम अकाउंट कॉस्ट करेगा that would be like 545 minus 40 is equal to 505 USD के अप्रॉक्स कुछ कॉस्ट करेगा. So now let me take you to my dashboard and let me show you when I purchased my first account with Fires. So here it is. So this was my first account and I purchased it on 10th August 2024. So जब मैंने Profirm की जर्नी 2024 में स्टार्ट करी थी, and like after taking few payouts from other Profirm, I purchased a Fires account, and पहला अकाउंट ही मैंने 100k का लिया था. उस टाइम 495 का ही कॉस्ट कर रहा था, उतना ही था, and पहला ही जो मेरा अकाउंट था मैंने Fires का लिया था. I traded with them, and I guess ये अकाउंट था प्लस आई गेस फंडेड नेक्स्ट का अकाउंट लिया था मैंने, बिकॉज फंडेड नेक्स्ट भी उस टाइम काफ़ी चल रही थी, उस टाइम काफ़ी नाम था फंड नेक्स्ट का. सो आई परचेज अ फंडेड नेक्स्ट अकाउंट, एंड फंडिंग पिप्स का मैंने अकाउंट लिया था. सो इन 3 के मैंने अकाउंट लिए थे, एंड आई गेस मैंने तीनों 100 के ब्रीच कर दिए थे. As far as I remember, Fire, Funding Pips and Funded Next, इन तीनों के मैंने अकाउंट लिए थे, इन तीनों के मैंने अकाउंट ब्रीच कर दिए थे. उसके बाद मैंने वापस से फायर्स का अकाउंट लिया था, फंडेड नेक्स्ट का एक अकाउंट लिया था, एंड फंडिंग पिप्स का एक अकाउंट लिया था. तो मेरा उसमें से फायर्स का एक अकाउंट पास हुआ था समवेयर अराउंड, इफ आई लाइक गो टू द सर्टिफिकेट्स. सो हियर इज द फाइल सेक्शन, यू कैन गो see the total withdrawal I have withdrawn from Fires till now, and the first account which I passed is on, what is this, it's 3rd of October 2024. so हाँ, जो मैंने मतलब इसके अगस्त के बाद जो मैंने दूसरा अकाउंट लिया था, वापस से 3 अकाउंट लिए थे, which one is of Fires, one is of Funded Next, and again the another one is of Funding Pips. so उसमें से मेरा एक अकाउंट पास हुआ था which is of Fires, and इस अकाउंट में से मैंने फिर इसको पास करने के 15-14 दिन बाद ही मैंने यहाँ से सबसे पहला पे आउट निकाला 646 USD का. नाउ इसको निकालने का मेरा रीज़न यही था कि फर्स्ट पे आउट पे जो हमारी फीस है वो भी रिफंड मिल जाती है. सो आई गेट 646 प्लस 545 USD. सो इन टोटल आई गॉट लाइक a 4-figure payout with from Fires. then उसके बाद मैंने एक और विड्रॉ लिया था from this same account 3rd नवंबर को. फिर उसके बाद मेरा अकाउंट फेल हो गया था, एंड देन मैंने उसको वापस से अपना एक अकाउंट पास करा था 2025 में. ये 2 पे आउट लेने के बाद मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया था, देन मैंने वापस से पास करा 2025 में. then I passed this account. I withdrawn, I don't remember I withdrawn any amount out of this account or not. then I passed this one, and मेरा जो आई गेस जो सेकंड या थर्ड टाइम में जो मेरा अकाउंट पास हुआ था उसमें से मैंने
मैंने फिर उसको स्केल करके मैंने उसमें से अप्रॉक्स उसमें 10 के बना दिया था। एंड जो मेरा उसके बाद सेकंड या थर्ड अकाउंट पास हुआ था उसमें मैंने स्केल करके उसमें 10% बना दिया था एंड वो मेरा 125 के का अकाउंट हो गया था। एंड आई एम गोना शो यू द स्केलिंग प्लान एज वेल, बट या वो मेरा अकाउंट 125 के का हो गया था। सो आई नॉट विड्रॉन अ बिग अमाउंट आउट ऑफ फायर्स, बट दिस 7863 is also I guess the decent amount compared to that of the other platform. This is not a very big one, but I have few goals with fires for this year, so I'm going to talk about that as well. But yeah, this was the account which I purchased. इसके बाद मैंने वापस से जो 3 अकाउंट लिए थे उसमें से मैंने फायर्स का ही अकाउंट पास करा था, उसमें से मैंने 1-2 विड्रॉल्स लिए, देन आई ब्रीच द अकाउंट, परचेज फ्यू मोर, देन उसमें से मैंने पे आउट भी निकाले, स्केल भी करा अकाउंट को, एंड आई एम गोना शो यू द स्केल्ड अकाउंट एज वेल, कौन से अकाउंट को मैंने स्केल करा था। बट या दिस वाज द फर्स्ट अकाउंट, एंड इफ आई गो बैक एंड शो यू द स्केल्ड अकाउंट, सो दिस वाज द अकाउंट व्हिच आई स्केल्ड, एंड ये मेरा फर्स्ट ही अकाउंट है। लाइक इफ आई अगेन गो बैक, एंड ये मेरा फर्स्ट अकाउंट मैंने लिया था, उसके बाद एक और अकाउंट लिया, उसको पास करा था। And if I can like again go to the payout section and again if I show you, alright, so there is a mistake. मेरा जो ये वाला अकाउंट था ना, इसको ही मैंने स्केल करा था, उसके बाद मैंने 2 अकाउंट पास करे हैं, बट मैं उससे मैं कभी पे आउट ले नहीं पाया। सो या दैट इज अ थिंग। मैंने जो ये वाला मेरा सबसे पहला ही अकाउंट था जो मैंने 2024 में पास करा था, उसको ही मैंने स्केल करा था। उसके बाद जो ये दोनों अकाउंट थे इससे मैंने कभी पे आउट ही नहीं लिया। आई गेस दिस इज द थिंग एज फार एज आई नो, यही हुआ था मेरे साथ। एंड या दैट इज द थिंग, बिकॉज इफ यू कैन सी द डेट्स एज वेल, 24 पहला पे आउट ये 20 अक्टूबर को, देन 3 नवंबर को, देन उसके बाद इस अकाउंट को मैंने रखा था 6 मार्च 2025 में पे आउट लिया, देन उसके बाद 20 मार्च 2025 में पे आउट लिया, 11 अप्रैल 2025 में पे आउट लिया, देन उसके बाद मेरे से ब्रीच हो गया था जब 125 पे स्केल हो गया था। मेरी जो रिस्ट्रिक्शन थी ना, पहले मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी 1% की, बिकॉज इन्होंने मेरे पे रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, लाइक विच इज द वेरी कॉमन थिंग। मतलब आज के टाइम में तो ऐसा है कि 1% रिस्ट्रिक्शन चाहे FTM हो चाहे कोई भी प्रोफॉर्म हो लगा ही रही है, इफ यू आर लाइक समवन हु इज लाइक मी, एंड मेरे को चलता है भाई। आई जस्ट वांट टू लाइक पास द अकाउंट एज सून एज पॉसिबल। मेरे को पता, मैं फंडेड में वैसे भी कम रिस्क करने वाला हूँ, मेरे को पता है ऑलरेडी ये चीज। फंडेड में 0.5 to 1% रिस्क करता हूँ, तो रिस्ट्रिक्शन लगा भी दे प्रोफॉर्म, मेरे को चलता है। Just that still मेरे को चैलेंज जल्दी पास करना है। So yeah, I took this account, I took the payout out of these 5 अकाउंट। जब मेरे से चाहिए 11 अप्रैल को ये पे आउट लेने के बाद ये अकाउंट जब फेल हुआ था, then I on 21st अप्रैल I passed one more account, then उसके बाद 29th को मैंने एक और पास करा था, उसके बाद 29 अगस्त को मैंने एक और पास करा था, बट उसके बाद मैंने वापस से अकाउंट लिया नहीं। देन ईयर एंड में मैंने एक अकाउंट लिया था, फेज 2 में भी पहुंचा, लास्ट का 0.5% बचा था, बट मैंने अकाउंट ब्रीच कर दिया। विल शो यू दैट एज वेल, बट या दैट इज द थिंग। सो दिस इज द अकाउंट, ये मैंने स्केल कर दिया था, इसमें 10% बना के आई स्केल दिस पर्टिकुलर अकाउंट, एंड आई विल शो यू द 125 के अकाउंट एज वेल। सो दिस इज द 125 के अकाउंट। ये ड्रॉ डाउन में गया था, थोड़ा रिकवर भी हुआ, वापस से DD में गया, रिकवर भी हुआ, वापस DD, रिकवर्ड, एंड बूम, one day I breached it. So I keep this account for quite a long time, not that long, but I keep this account for quite a long time, almost like 2 weeks. But then उसके बाद मैंने इसमें गड़बड़ कर दी, and I lost this one account, and I lost this account. And there is one more thing. Alright, so there is one more issue. अभी जब मैंने यहाँ पे डेट चेक करी, so जब मेरा अकाउंट स्केल हुआ था ना, ये वाला, so जो ये तुम 21 अप्रैल का ये देख रहे हो अकाउंट, ये मेरा जब अकाउंट स्केल हुआ था ना, ये उसका सर्टिफिकेट है। उसके बाद मैंने सिर्फ एक ही अकाउंट पास करा है, which is on 29th of August। उसके बाद मैंने कोई अकाउंट इनका पास नहीं करा। रिसेंटली जो मेरा फेज 2 में जाके 0.5% बचा था, उसमें भी ब्रीच हो गया। वो ये वाला अकाउंट है। दिस इज लाइक यू कैन सी फेज 2 अकाउंट, ठीक है। आई टुक दिस अकाउंट टू 4606, लास्ट का 400 बचा था सिर्फ इसमें। देन आई लॉस्ट इट, आई वाज रिस्किंग मोर एज आई यूज्ड टू डू इन द चैलेंज फेज, एंड आई लॉस्ट दिस अकाउंट। बट आई एम गोना लाइक परचेज वन मोर अकाउंट विद देम नाउ ओनली इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपन। थोड़ा गड़बड़ हो गई है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ सर्टिफिकेट्स, एंड इवन मैंने भी काफ़ी अकाउंट खरीदे हैं फायर्स के, बिकॉज इट इज़ लाइक वन ऑफ द ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म, बट बीच में फिर मैंने खरीदने बंद कर दिए थे। आई परचेज इट अगेन। आई इवन टुक द फेज 2 टू 4600, लास्ट का 0.5 भी नहीं 0.4 बचा था, बट आई लॉस्ट दिस वन अकाउंट। सो या आई स्केल्ड वन अकाउंट एज वेल। सो जो मेरा पहला अकाउंट था, अब मैं समझ गया हूँ सर्टिफिकेट एग्जैक्टली कैसे अलाइंड है इनके। सो फाइनली मैंने इतना कभी इन डेप्थ में खोल के देखा नहीं। सो फाइनली नाउ आई अंडरस्टैंड हाउ ऑल दी सर्टिफिकेट्स आर अलाइंड। सो मेरा सबसे पहला अकाउंट था जो मैंने लिया था, दैट इज इन अगस्त 2024,
ब्रीच हो गया था, उसमें फंडेड नेक्स्ट भी था, फंडिंग पिप्स था, फायर्स था, तीनों ब्रीच हो गए थे। दोज वर द फर्स्ट 100 के अकाउंट आई परचेज, देन उसके बाद मैंने वापस से लिए, उसमें से मेरा फायर्स का पास हुआ था। आई हैव विड्रॉन डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी आउट ऑफ दैट अकाउंट, स्केल्ड दैट अकाउंट 10%। स्केल्ड होने के बाद ये जो नया अकाउंट मिला था which I got on 21st of April 2025, here is the certificate of that as well. Then ये मैंने अकाउंट ब्रीच कर दिया था as I clearly showed you। ये बहुत लंबे टाइम तक साइडवेज चला, बहुत लंबे टाइम नहीं, कुछ टाइम तक साइडवेज चला। Then I breached this account। Then उसके बाद मैंने एक अकाउंट पास करा था, but again I breached this one as well without taking a single payout। I'm gonna show you this as well। ये जो मेरा अकाउंट है ना, ये मेरा अकाउंट पॉजिटिव में क्लोज हुआ था। I'm gonna show you just a minute। I'm gonna show you this thing as well, क्योंकि ये मेरा अकाउंट पॉजिटिव में क्लोज हुआ था। मैं अपने अकाउंट को पॉजिटिव में लेके गया था, बट मेरा डेली ड्रॉ डाउन लिमिट इसमें हिट हो गया, तो ये मेरा अकाउंट क्लोज हो गया था। सो या दिस इज द अकाउंट, यही वाला अकाउंट है। अब मैं तुमको बोल रहा था ये अकाउंट में पॉजिटिव में लेके गया था, ये अकाउंट को मैंने स्केल कर दिया था कहाँ तक, 13,000 USD तक। बट इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई ग्रीड, मैंने विड्रॉ करा नहीं, और ये अकाउंट ड्रॉ डाउन में भी गया था। यू कैन सी 95,000 के DD में भी गया था। रिकवर्ड दिस अकाउंट, टुक दिस अकाउंट टू 13,000 USD, देन मेड फ्यू लॉसेस। देन यू कैन सी वापस से ब्रेक इवन आया था, वापस से मैं इसको 10K लेके गया पूरा ऊपर तक। देन वन डे देयर वाज अ बिग कैंडल फॉर्मेशन, गोल्ड में मैंने बाय किया था, सेल आया, एंड विद इन सेकंड्स मेरा अकाउंट ब्रीच हुआ था। मेरे को एसएल लगाने का भी टाइम नहीं मिला। यस, दिस इज द वन, दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन सी भाई क्लियरली। देखो 11:35 पे मैंने ओपन करा, 11:35 पे ही क्लोज हो गया। इतना तेज फॉल आया था भाई इसके अंदर। एंड द थिंग इज, मैंने इसमें कॉन्ट्रैक्ट ना बहुत ज्यादा खोल दिए थे। यू कैन सी दिस इज द सेम ट्रेड भाई, देखो 5 कॉन्ट्रैक्ट एंड 3 कॉन्ट्रैक्ट, एंड मेरे पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। मैंने भाई पता नहीं, मेरे को रिकवर करना था मेरा अकाउंट, एंड आई वाज एमिंग फॉर अ बिग विड्रॉल बिकॉज 13 के मैं ऑलरेडी इस पे पहुंचा हुआ था। वापस ब्रेक इवन जाके वापस 10 के आया था। सो आई वाज एमिंग कि आई टुक दिस अकाउंट टू 20K एंड फायर से एक बड़ा विड्रॉल लेंगे, बट आई मेड अ बिग मिस्टेक। आई ओपन लाइक 8 कॉन्ट्रैक्ट, एंड 8 कॉन्ट्रैक्ट ओपन करने के बाद यू कैन सी ओपन टाइम क्लोज टाइम पूरा सेम है भाई। आई मेड अ बिग फक अप हियर एंड आई लॉस्ट दिस वन अकाउंट। सो ये जो अकाउंट तुमको यहाँ पे दिख रहा है ना, दिस वाज द अकाउंट जो मैं 13K अप लेके गया था, वापस ब्रेक इवन आने के बाद वापस से 10K अप लेके गया था। देन आई लॉस्ट दिस अकाउंट। सो या दैट इज द थिंग। देन आई शोड यू लाइक द स्केल्ड अकाउंट एज वेल। दिस इज द अकाउंट जो अभी मेरा फेज 2 में था, एंड जिसको मैं लास्ट का मेरा 0.4% बचा था, एंड मैंने वहां से ब्रीच कर दिया। एंड द थिंग इज व्हाट आई डू, एंड दैट इज समथिंग व्हिच मोस्ट ऑफ द पीपल वांट टू नो कि भाई हमारा भी अकाउंट होता है। हमारा भी अकाउंट जो है ना, कितनी बार ऐसा होता है कि भाई हमारे पास ना अकाउंट है, हम लास्ट तक लेके जाते हैं, लास्ट के 0.1 0.2% में जाके ना हमारा अकाउंट रिवर्स हो जाता है, हम पूरा उसको ब्रीच कर देते हैं। एंड दैट इज समथिंग व्हिच नॉट हैपन विद यू, दैट इज समथिंग व्हिच हैपन विद एवरी सिंगल पर्सन। जस्ट दैट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट शो यू द रियलिटी, एंड दैट्स व्हाई यू थिंक कि सिर्फ तुम्हारे साथ ही हो रहा है। देयर इज अ क्लियर एग्जांपल भाई, ये क्लियर है भाई, देखो ना तुम कहां तक गया था भाई। यू कैन क्लियरली सी इट। मेरा दूसरे वाला अकाउंट का है, यू कैन क्लियरली सी इट। फंडेड अकाउंट था भाई मेरा, ये 13K तक लेके गया था, आई लॉस्ट इट, एंड प्रॉफिट में लूज हुआ। ये लॉस में नहीं गया था मेरा अकाउंट, प्रॉफिट में ही मैंने लूज कर दिया, बिकॉज डेली ड्रॉ डाउन लिमिट हिट हो गई थी, बिकॉज पोजीशन इतनी बड़ी थी, एंड बड़ी सी एक कैंडल बनी थी। 35 पे ही ओपन है, 35 पे ही क्लोज है, 35 ओपन 35 क्लोज। सो दिस इज समथिंग व्हिच हैपन विद एवरीवन। इट्स जस्ट दैट listen to this thing very carefully, it is just that the number of time a thing used to repeat वो रिड्यूस होता जाता है when you get some sort of experience। ये चीज जो मेरे साथ पहले वीकली बेसिस पे होती थी, अब वो मंथली बेसिस पे होने लगी है। थोड़ा टाइम बाद क्या होगा, जो मंथली बेसिस पे होती है वो क्वार्टरली बेसिस पे हो जाएगी। क्वार्टरली बेसिस पे होने के बाद लेट्स से 6 मंथ बेसिस पे हो जाएगी, एंड देन मे बी ये सेम मिस्टेक मैं रिपीट करूंगा, बट दैट विल हैपन ऑन लेट्स से ऑन अ ईयरली बेसिस। यू थिंक ऑल दिस पीपल हु वर्क विद बिग hedge funds and institutions, those people who has a team of 100 and 1000 of people, they don't make any mistake. Even those people made all the mistakes, bro. Even those people go through all these things, they made all the mistake, they made all the bad decision, they go through losing streak, but it's just that वो जो एक इमोशनल टिल्ट आता है ना, वो साइकोलॉजी हिट होती है, पुअर रिस्क मैनेजमेंट की वजह से जो सारी चीजें होती है ना, वो सर्टेन टाइम के बाद जब रिपीटिशन एक चीज तुम बार बार कर रहे हो, लेट्स से आई एम डूइंग अ डेडलिफ्ट एंड मैं कर रहा हूँ, वापस से मेरी बैक इंजर्ड हो गई, मैं वापस से कर रहा हूँ, वापस से मेरी बैक इंजर्ड हो गई, वापस से कर रहा हूँ, वापस से मेरी बैक इंजर्ड हो गई। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं बैठूंगा, मैं सोचूंगा कि ये बार बैक इंजर्ड हो रही है, देन व्हाट गोना हैपन इज मैं इंप्रूव करूंगा उसको। बट जब मैं इंप्रूव करते करते उसमें वेट बढ़ाऊंगा ना, तो ऐसा होगा जब एक पॉइंट आएगा, लेट्स से मैं 50 kg से स्टार्ट करता हूं, मैं 100 kg पे पहुंचा ना जब, तो वहां पे जाके
वापस से एक बार कभी ना कभी वो टिल्ट मूवमेंट आ जाएगा कि वापस से इंजर्ड होगा। बट जहाँ पहले मेरा हमेशा लेट्स से वीक में एक बार मैं डेडलिफ्ट मारा था, हमेशा हो रहा था, अब वो मे बी मंथ में या फिर एक बार एक क्वार्टर में एक बार चीज हुई होगी वो, देन मैं थोड़ा उसको और बढ़ाऊंगा तो वो चीज होगी। मे बी लेट्स से जब मैं 200 पे पहुंचू, जब वापस से एक बार हो। बट वही मैं सीख रहा हूँ, रेपिटेशन से मैं सीख रहा हूँ, मेरे को पता चल रहा है ये मिस्टेक बार बार कर रहा था, अब इसको मेरे को नहीं करना, एंड दैट इज द ओनली थिंग, दैट्स हाउ यू गोना इंप्रूव। नो वन गोना लाइक स्पून फीड यू कि भाई ये चीज है, इसको ऐसे कर दे नहीं सुधर जाएगा। नहीं होता भाई ऐसा। यू विल सिट विद योर फोन एंड योर लैपटॉप एंड तुम अकेले बैठ के ट्रेड कर रहे हो भाई, इवन तुम किसी के साथ बैठ के भी ट्रेड कर रहे हो ना, जब भी तुम अपने लैपटॉप में देख रहे हो वो साथ वाले बंदे का ध्यान नहीं है, तुम अपने लैपटॉप में देखते देखते क्या क्या मिस्टेक्स कर देते हो तुमको ही पता, और तुम करते भी होगे वैसे। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ट्रेड अलोन, जो दूसरों के साथ ट्रेड करते भी है तुमको ही पता यार, तुम दो बंदे ट्रेड कर भी रहे हो फिर भी ये सब मिस्टेक होती है। जस्ट दैट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस विद टाइम। ये चीज मेरे साथ जो पहले बहुत ज्यादा होती थी, अब उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई, दैट्स इट, एंड दैट इज समथिंग व्हिच गोना हैपन विद यू। धीरे धीरे तुमको पता चलेगा भाई बार बार ऐसी हो रहा है, बार बार ऐसी हो रहा है, तो मैं क्या चीज ऐसी करूँ कि बार बार ना हो। बट कभी ना कभी ऐसा सिचुएशंस होंगी जब तुम्हारा इमोशनल टिल्ट होगा, तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट हिल जाएगा, जिसकी वजह से ये सारी चीजें होंगी। इट्स जस्ट दैट द फ्रीक्वेंसी हैज टू रिड्यूस विद टाइम, दैट्स इट। एंड नाउ लेट मी टेक यू टू द स्केलिंग plan which they have. I showed you like every single thing, all my accounts which I purchased with them. I'm gonna like purchase one more account. So पहले account ही purchase कर लेते हैं यार। I'll do it. I'll put it on a fast forward mode so that फटाफट से So purchase this new account. Now my goal is to clear this account as soon as possible and then to scale this account. Scale करना मेरा goal है and I want to scale it to almost 300k. 300k 500k तक था ना. So let's go to the scaling plan. And इनके जो high stake है ना, इसके अंदर एक और option आया है इनका, which is like reverse high stake, which I'll show you once again. So if we again go to the new order. And if I click on high stake, you can see there are two options, 100k and 100k reverse. So what happened with 100k reverse is तुम्हारा जो फेज़ 1 का टारगेट है वो 8% हो जाता है, फेज़ 2 का 2% हो जाता है, बट गो विद द नॉर्मल 100k जहाँ पे तुम्हारा फेज़ 1 में 8% रहता है, फेज़ 2 में 5% रहता है. नाउ इफ़ यू गो टू द स्केलिंग प्लान विच इज़ द बेस्ट, एंड देयर इज़ अ रीज़न व्हाई आई वांट टू स्केल माय 100k अकाउंट दिस टाइम अगेन, जो कि मैं ऑलरेडी एक बार कर चुका हूँ. सो दिस इज द स्केलिंग प्लान विच दे हैव स्टार्टिंग फ्रॉम 5000. यू कैन स्केल योर अकाउंट टू 500,000, and that is like one of the best thing, that is the best scaling plan which they have. But there is one more thing which I feel, अगर तुम छोटे अकाउंट पे ट्रेड कर रहे हो, the first goal you should be having is to like take your amount out of your account and उससे तुम और पहले अकाउंट्स परचेज करो, बड़े अकाउंट पे जाओ, and you should be focusing on scaling your account when you reach to 100k. बिकॉज ये देखो, ये तुम्हारा प्रोसेस इतना लंबा रहने वाला है, फिर स्टार्टिंग फ्रॉम 5k अकाउंट, ठीक है, जैसे तुम 10k अकाउंट से भी ट्रेड कर रहे हो, तुम्हारा प्रोसेस बहुत लंबा रहने वाला है, ठीक है. बट इफ़ यू कम टू दिस 100k अकाउंट एंड यहाँ से तुम स्टार्ट ही कर रहे हो, एज आई स्टार्टेड फ्रॉम 100k अकाउंट, ठीक है, मतलब 5k अकाउंट तुम लो, ठीक है. योर फर्स्ट गोल शुड बी कि 5k अकाउंट मैंने लिया, मैंने यहाँ से विड्रॉ निकाल लिया, लेट्स से तुमने यहाँ पे 10% बनाया, 500 का विड्रॉ निकाला, अब तुम क्या करो, सीधा 50k अकाउंट पे जाओ, 50k अकाउंट पे जाके उसको स्केल करने का ट्राई करो इंस्टेड ऑफ स्केलिंग दिस पर्टिकुलर अकाउंट. तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा बचने वाला है उसके अंदर, और 500 भी तुमने निकाला, यू गोना गेट लाइक 80% के हिसाब से यू गोना गेट 400. सो 400 को यूज़ करके तुम 50k का अकाउंट खरीदो. अभी तो इसमें 60 दिखा रहा होगा, या इट्स शोइंग 60, बट दे गोना कम अप विद 25k एंड 50k अकाउंट. सो उसको 50k का अकाउंट तुम उसमें परचेज करो, उसको स्केल करने का ट्राई करो. और इफ़ यू लाइक स्केल दिस अकाउंट, लेट्स से यू स्केल दिस अकाउंट, तुमने 10% बनाया, 500 बनाया, तुम्हारा यही अकाउंट चल रहा है, यू अगेन मेक लाइक 10%, यू टुक दिस अकाउंट टू 10k एंड यहाँ पे तुमने बनाया, यू हैव विड्रॉन डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी. सो इतना बनाने के बाद तुम इन तीनों में ऑलमोस्ट 2100 के अप्रॉक्स निकाल चुके हो, ठीक है. तो अब तुम्हारे पास डिसेंट अमाउंट है. नाउ डायरेक्टली जंप, इंस्टेड ऑफ लाइक गोइंग स्लोली थ्रू ऑल दिस, just get a 100k and यहाँ से भी डायरेक्टली उसको स्केल करना स्टार्ट करो. you make 10% on 100k, scale it to 125k. सो सीधे 25k का जंप हो रहा है तुम्हारा. यहाँ 2500 का जंप करोगे, यहाँ 25,000 का जंप करोगे. दैट इज द बिगेस्ट थिंग. ऑन टॉप ऑफ दैट 4 बार तुमने 25,000 का जंप करा, देन यू आर डायरेक्टली जंपिंग विद 50,000. तुम्हारा 10% बनाया, यू जंप टू 125, अगेन यू मेड 10%, यू जंप टू 150, अगेन यू मेड 10%, यू जंप टू 175, यू मेड 10% अगेन, तुम आ गए 200,000 पे. 4 बार तुमने 10% बनाया, यू कम टू 200,000. नाउ
your account balance gonna increase with 50,000 every time you make 10%. So you only have to make 20,000, your account balance increase to 250k, 30,000 extra से तुम्हारा account balance increase हो रहा है. And that is this scaling plan is only there in the high stake option. That is the reason 95 to 97% people go with this option. Then you make again 25,000 on this account, your account balance again increases by 50,000 and that increases to 500,000. And the best part is like once you reach to 200k तुम्हारा जो profit split है 85 हो जाता है. But the things start to change from here. Once you reach to 350k, which definitely gonna take time, but I told you, if you are someone who don't have money, start with this. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करो, 1-2 स्टेप करो, यहाँ पे मैक्स टू मैक्स यहाँ तक करो, यहाँ से विड्रॉ निकालो. यू हैव लाइक प्रूव्ड योर सेल्फ कि तुम 3-4 तुमने विड्रॉ ले लिए, अब तुम बड़े अकाउंट पे शिफ्ट हो सकते हो. यू गो विद लाइक 50k और 100k, बट अगर तुम 2000 तक निकाल चुके हो तो तुम 100k पे जा सकते हो, बिकॉज लाइक यू गोना पुट लाइक 500, तो तुम्हारे पास फिर भी 1500 बचेगा विच इज सेव्ड विद यू. गो विद दिस, डायरेक्टली स्टार्ट स्केलिंग फ्रॉम देयर. ये जो बीच का प्रोसेस है ना, ये यू हैव टू लाइक एलिमिनेट दिस प्रोसेस. ये इतना बड़ा तुमको प्रोसेस क्यों करना भाई? यहाँ से लेके ये यहाँ से पकड़ लो भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक का तुम प्रोसेस है पूरा एलिमिनेट कर सकते हो. यू कैन डायरेक्टली जंप हेयर आफ्टर इवन बाय स्टार्टिंग विद अ 5k अकाउंट. देन डू इट. देन द गेम चेंजेस व्हेन यू कम टू 350k. Then you're gonna get 100% of whatever you made. On top of that, you're gonna get 4,000 fixed on the monthly basis. I guess this is on the monthly basis. I need to check this. I'll put this in the description कि इसका exact scenario क्या है. But this is something which you're gonna get on monthly basis. And by the time you scale your account to 500,000, you're gonna get 10,000 USD fixed reward. And I guess this is gonna be on monthly basis. या फिर ये हर reward के साथ तुमको मिलेगा. I need to check this thing. And मैं नीचे description में इसको डाल दूंगा कि what exactly this is. So the real game changes from here. जब तुम 350 पहुंच जाते हो. And I showed you the roadmap, guys. Even you are someone who don't have money, you can start from a 5k अकाउंट, स्केल इट अप, रीच टू 10k. वहां तक तुमने अराउंड 2000 निकाल लिया, 2000 में से सिर्फ 500 निकालो, 100k में डालो. यू स्किप्ड द होल प्रोसेस. जहां पे तुमको हर विड्रॉल में 14 डेज का टाइम होता है, उसमें भी तुम्हारा ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता ही रहेगा. कभी थोड़े तुमने 14 डेज में तुम प्रॉफिट में निकल रहे हो. वो तो बीच का इतना बड़ा प्रोसेस है ना. यू स्किप्ड दैट प्रोसेस. यू सेव्ड ऑलमोस्ट लाइक 5 to 6 months ऑफ योर टाइम एंड यू पुट योर टाइम हेयर. यहां से स्टार्ट करो, यहाँ पे टाइम पुट इन्वेस्ट करो अपना, जहां पे तुम बनाओगे भी ज्यादा, स्प्लिट भी ज्यादा मिलेगा. And once you reach to this level, then you're gonna get 4,000 as a fixed reward. And that is something which is like quite interesting, and that's the reason why they have the best scaling plan in the entire Perform space. So yeah, that is the thing. Apart from that, there is no rule. I told you the high stake plan is the best plan which they have, and I showed you the scaling plan as well. I showed you my dashboard as well, that I have scaled the account. I have made the mistake. I lost my funded account even after making 13k. I bring it to break even, lost, made 10k, then lost it all. I have showed you that I recently purchased a 100k account, took it to phase 2. Last का सिर्फ 400 बचा था. I breached that account from there, and I told you what exactly you have to do if you are someone who is going through this, because सबके साथ होता है. It's just that you have to go through all these tilt movements, but the frequency need to reduce with time. And that's it for this video. I have purchased one more 100k account. My goal is to scale this account. I'm gonna trade this one slowly because I've already experienced the fires, and I guess मैंने ना किसी YouTube वीडियो में ये चीज़ वीडियो बना के बोली थी कि फायर्स में यार मेरे पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी, but they automatically removed the restriction once I scaled my account. And उसके बाद जब मैंने दूसरी बार भी पास करा था, they haven't put any restriction on me, because जब second time मैंने अकाउंट पास करा था इनका, which is in August 2025, उस टाइम मैंने 2% या 2.5% रिस्क करके पास करा था. आई गेस 3% तुम नीचे रिस्क कर रहे हो, चैलेंज में कोई इशू नहीं आने वाला तुमको. सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. One of the most trusted Perform, one of the oldest Perform, one of the Perform which has the best scaling plan, the Perform which has the OG CFD Perform plan, 2-step OG CFD Perform plan, and the Perform which never denies the payout. Apart from that, you're gonna find the link in the description. अगर कोई कोड हुआ तो I'm gonna put the code in the description. अगर कोई कोड होगा भी तो it's gonna be MSR only, like other Perform. It's MSR for all the Perform. अगर कोई कोड हुआ, if I get any code, I'll put it in the description, या फिर मैं नीचे वीडियो के नीचे यहाँ पे लिख दूंगा. So that's all for this video. See you in the next video. Tata, bye bye. Let me know in the comment और कौन सी Perform का रिव्यू चाहिए, because अभी थोड़े टाइम तो मैं रिव्यू वीडियो ही बनाने वाला हूँ, because स्ट्राइक्स आ रखे हैं भाई.
माई चैनल पे, एंड आई डोंट वांट टू लूज माई चैनल बाय मेकिंग लॉट ऑफ वीडियोस जहाँ पे मेरे को तुमको काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें बतानी पड़े, जिसकी वजह से यूट्यूब उसको डिटेक्ट करके पता नहीं कहाँ कहाँ डाल देता है और वीडियो रिमूव कर देता है एंड स्ट्राइक डाल देता है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. सी इन द नेक्स्ट वीडियो. लेट मी नो इन द कमेंट which video you want next, and make sure you hit the like button and make sure you hit the subscribe button as well. Tata, bye bye.